Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, take out your book, open page number 84. Take one rough copy also, so that you can note down the things from the board also, and even if there is any doubt, you can ask me in online doubt session. So before starting, let do little recapitulation. What we have done in our previous video. So student, in my previous video, we are discussing the functions of municipality. In the same manner, when I teach you student about Gram Panchayat, that every village have their own Gram Panchayat, and the head of the Gram Panchayat is known as Sarpanch, or even you can say Pradhan. And what are the functions of a Gram Panchayat we have discussed. So function of a, today we will discuss function of a municipality. Community services. Functions of the municipality. It means, what does it mean, student? It means we are talking about municipal committee and municipal corporation. It means, student, we are talking about municipal. What is the function of municipal committees in towns, and what is the function of municipal corporation in the big cities? Is it clear? So we have already discussed 4 functions in our previous video. That is, provide good living conditions for the people of a town or city. Build and maintain roads and keep them clean. Provide enough water for all daily needs, because student, we know that we need water not only for drinking purpose or for cooking purpose. There are many activities in our day-to-day life in which we need the water. So there is a good supply of a water in the area where the peoples are living. ठीक है, क्योंकि बेटा टाउन्स और सिटीज में वेल्स ये सब नहीं होते हैं, ये आपको विलेजेस एरियाज में मिलेंगे. ओके, सो हियर द वाटर इज सप्लाइड बाय ए पाइपलाइंस थ्रू द टैप. ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू टैप से वाटर आता है.
सो इन दिस एरिया देयर इज अ फिक्स्ड टाइमिंग फॉर दैट। ठीक है, ये नहीं है कि 24 आवर वाटर आ रहा है। अगर ऐसा आने लगा तो लोग नल बंद करना भूल जाएंगे। और बेटा वंस द वाटर, एक बार वाटर ड्रेन हो जाता है पाइप से, तो वो क्या हो जाता है, डर्टी वाटर हो जाता है। दैट वाटर यू कांट यूज। इज इट क्लियर? सो इन एवरी एरिया देयर इज अ फिक्स टाइमिंग फॉर द वाटर सप्लाई। मॉर्निंग के भी कुछ आवर्स होते हैं और इवनिंग के भी बेटा कुछ आवर्स होते हैं। ठीक है, एक फिक्स टाइम होता है, क्योंकि वी नो दैट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी प्रीशियस। क्योंकि आप तो ये सोचते होगे कि 70% पोर्शन, बहुत सर ने बताया कि वाटर है 70% से भी ज्यादा, लेकिन बेटा आउट ऑफ 70 ओनली हाउ मच परसेंट वाटर इज प्योर फॉर ड्रिंकिंग? 69% water is salty and 3% water is fit for drinking. So that is the reason in the cities area there is a fixed timing, and at that time the water comes in the tap, in the morning also or in the evening also. Okay, so timing may be differ in differ area. उसमें टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है कुछ समय इस एरिया के लोगों के लिए हो, अदर कम्युनिटी पीपल्स के लिए टाइमिंग कुछ और। ठीक है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड पीपल विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, बिकॉज मैनी वी सफर फ्रॉम मैनी डिफरेंट डिजीजेस इफ वी आर ड्रिंकिंग नॉट क्लीन वाटर। अगर हम साफ पानी नहीं पी रहे हैं तो बहुत बीमारियां हो जाती हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 5th पॉइंट। सेट अप स्कूल्स adult education so this is one of the important role of municipality is set up schools, because education is very necessary. So for the education purpose there are many schools are also in that area, and these services are also provided by private sectors also. इज इट क्लियर? प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत से प्राइवेट स्कूल्स भी है ना बेटा आपके एरिया में, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। फिर नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन। सी कम्युनिटी, आवर कम्युनिटी चैप्टर में मैंने बताया था एडल्ट लिटरेसी। अगर आपको याद होगा तो रिमेंबर करो, वहां पे क्या है, कम्युनिटी ने स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया था। कम्युनिटी इन्वॉल्व स्कूल स्टूडेंट आल्सो, दे इनकरेज देम, उन्हें मोटिवेट किया गया कि दे टीच द एल्डर्स इन देयर फैमिली। अगर उनके फैमिली में कोई एल्डर है या अगल बगल भी है कोई भी उनके नेबरहुड में, सो दे कैन टीच देम। इज इट क्लियर? एडल्ट लिटरेसी, दिस thing we have already discussed in chapter number 13, that is our community. नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं अभी एक और है, सेटअप स्कूल्स हो गए। स्कूल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट बिकॉज दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे
get the education. These are the places from where they get the education. Next, adult education. So community involve school student, encourage them, motivate them to teach the elder person in their family. And libraries, see, when you come to school, every school has a library. What you get in the library? There are lot of study books related to all the subject you will get in the library. And not only study material, you also get many stories books also in a library. In the same manner, they arrange libraries for the people living in that area, so that they go in the library, they can take the book from the library, they can read there. So all these things happens. Okay, जैसे आपके स्कूल के कार्ड होते हैं ना बेटा, वैसे इन लाइब्रेरीज में भी कार्ड्स होते हैं, आप वहां भी रीड कर सकते हो। बहुत लोग तो डेली जाते हैं, इन द मॉर्निंग डेली वो जाते हैं, बिकॉज दे रीड द न्यूज़पेपर। क्योंकि हो सकता है आप अपने घर में एक ही न्यूज़पेपर लगा दे हो या दो लगाए हो, वहां आप जाओगे आपको सब न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, हिंदी वाले भी सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। जैसे आप अपने स्कूल में आते होगे तो आपको आपके घर में हो सकता है स्पेशली कोई एक न्यूज़पेपर आता होगा, बट इफ यू सी इन अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो अब आना अपने स्कूल की लाइब्रेरी में देखना, you will get all the newspaper of Hindi also, and even you get the newspaper of English also. So the same, that is the facility of the library. अब अपने घर में आप 10 तरह के पेपर नहीं ना लगा सकते, okay, but in the library you will get paper, all types of paper you will get in the library. So these types of facilities also available for the people living in that area. Okay, next point is ensure supply of electricity to homes and lightening of the streets. Ensure supply of electricity, because these days maximum things, facilities which we are using in the house. ठीक है, मेरी वीडियो के बाद बेटा आप एक पेज ले लेना और एक पेन ले लेना और एक लिस्ट बनाना, कितनी चीजें हैं आपके घर में दोज आर रनिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट important need of the people living in that area, because see, especially in the towns and cities area, hardly you will find any tree, पेड़ पौधे बहुत कम हैं, areas are very crowded, you will see lot of houses in your surrounding. ऐसा नहीं कि आज मैं बता रहा हूं तो तुम्हें समझ में आएगा, आप लोग अब 4th में हो गए हो, आप भी अब इस बात को रियलाइज करते होगे कि अगर आप सिटीज एरिया में हैं तो आपको ग्रीनरी एरिया बहुत लेस पेड़ देखने को मिलते हैं। इफ यू सी इन योर सराउंडिंग यू विल सी लॉट ऑफ बिग बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, लॉट ऑफ पॉल्यूशन, दैट थिंग्स यू विल सी इन द एरिया वेयर यू आर लिविंग। लॉट इज क्राउड। अब 39 GTC वाले बोलेंगे तो हमारे यहाँ तो बहुत पेड़ है, लग रहा है सर को आए बहुत दिन हो गया है। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटी एरिया, कैंटोनमेंट एरिया ठीक है, वहां फॉरेस्ट बहुत
वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं। बट आप कैंटोनमेंट से बाहर निकल के देखो, आ जाओ कैंट की तरफ और फिर बता देना कितने ट्रीज हैं। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एरिया। ठीक है मैम, सो ये एरिया बहुत क्राउडेड होते हैं, पॉल्यूशन बहुत होती है और हॉट होते हैं, क्योंकि बेटा जब ट्रीज होंगे तब तो एयर चलेगी। ठीक है, जहां तुम्हें ट्री हार्डली कोई देखने को मिल रहा है तो वहां तो एटमोस्फेयर क्या वार्म ही रहेगा। एटमोस्फेयर कैसा रहेगा? वार्म रहेगा। एंड maximum things which run in our house that runs on electricity. So for the people, those who are living in that area, good electric facility should be provided by these committees. Okay, and lightening of the street, it means it is talking about the road light. आप देखते हो ना, दिन में तो लाइट की कोई जरूरत नहीं है, एवरी ऑल थिंग्स आर विजिबल because sunlight is there, the most powerful light on this planet, that is sunlight in the daytime. But what about night? नाइट में जब लाइट जलती है तब हम लोग को चीजें विजुअल होती हैं। आप कभी भी ध्यान देखना, आप हम लोग की आईज से जब व्हेन इट इज डार्क एंड देयर इज नो लाइट तो हमें चीजें क्लियर नजर नहीं आती हैं, हमें चीजें क्लियर विजिबल नहीं होती हैं, है ना। जैसे कभी कभी अचानक से लाइट चली जाती है घर में और गलती से आप दूसरे के घर में गए हो, अपने में हो तो अपने में आदमी, चलो रोज जहाँ रहते हो तो गेस करके आदमी चला जाता है, कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जो हाँ अचानक लाइट चली जाए, दैट प्लेस इज न्यू फॉर दैट। तुम यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूं ना, यहाँ से वहां तक जाने में डरोगे। ठीक है, क्योंकि तुम पहले से अवेयर नहीं हो उस जगह से। सो हमें थिंग्स क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं बिना लाइट के। सो हियर लाइटनिंग ऑफ द स्ट्रीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोड लाइट्स। रोड रात में भी बहुत ट्रैफिक होती है टाउन्स और सिटीज में। बड़े शहरों में चले जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि लोग सोते भी हैं। रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, हाईवे पे व्हीकल्स फुल स्पीड से, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना। सो दैट स्ट्रीट लाइट इज वेरी नेसेसरी। लाइट नहीं होगी बहुत से एक्सीडेंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो लाइटनिंग ऑफ द स्ट्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, otherwise there are lot of road accidents. Next, issuing of birth and death certificate. Issuing of birth and death certificate. अब देखो, इशूइंग ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, अब ये चीज तुम्हारे लिए न्यू टाइप की लग रही हो, मैं बहुत सिंपल बताता हूं तुम्हें। ठीक है, लास्ट ईयर में आपका क्लास टीचर था 3rd A का। ठीक है, सो व्हाट द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई एंटर इन द क्लास, आई टेक योर अटेंडेंस, मेंटेन द रजिस्टर, आई डेली टेक योर अटेंडेंस। और मुझे हमेशा पता होता था मेरी क्लास में क्या स्ट्रेंथ है, आप लोग को भी याद हो जाता था। कोई नया बच्चा आता था तो एक बच्चा बढ़ जाता था, अब व्हाट इज द क्लास स्ट्रेंथ, तो आप लोग पहले 38 होती थी तो आप लोग बोलते थे अब 39 है। तो आपको कैसे पता चलता था? क्योंकि डेली आप अपनी अटेंडेंस देते थे, और हम बोर्ड बाहर भी लिखते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, नंबर ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट हम लिखते हैं ना। इससे
कोई भी हमसे पूछ ले तो हम तुरंत बता देंगे क्लास थर्ड ए में इतने स्टूडेंट हैं, इतने प्रेजेंट एब्सेंट हैं। एक डाटा बनाते हैं ना और उसे डेली फिल करते हैं ना। इज इट क्लियर? अब सेम थिंग है। अब देखो, अब इस एरिया में इफ समवन टेक बर्थ, सो दीज municipalities दे प्रोवाइड बर्थ सर्टिफिकेट। क्यों? वो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि 2020 है, इस साल कितने नए बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चों का जन्म हुआ। और ये कंपल्सरी है, सारे पेरेंट्स को बनवाना पड़ता है। कुछ चीजें गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दी हैं क्योंकि आपके मम्मी पापा को ये करना ही करना है। क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तब आपके मम्मी पापा से बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और वो हॉस्पिटल का नहीं चलता है। ये वाई दिस इज कंपल्सरी। तब वो लोग हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दैट इज द टाइमिंग, ये डे था बच्चा पैदा हो। नो, दे फॉलो दिस सर्टिफिकेट विच इज इशू बाय द municipality. They follow this certificate because these are the peoples who are maintaining the strength in that। ये भी अपने रजिस्टर में स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहे हैं कि इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो कोई भी बच्चा अगर इफ चाइल्ड birth of a child take place, their parents go and they tell the date, all that things, and then they issue the birth certificate of that child. In the same manner, student, if someone die, then also it is compulsory that we have to inform them, and after few days they issue a death certificate. So in this manner they have make a register. They know what is the population of the people living in this area, and when they get number of death certificate, matlab in 2020 for example 100 people die, then they can minus from the total and they get the current population of that area. In the same manner in which manner we are maintaining register, your attendance register, because we are subtracting the absentees from the total, that is the number of student present. In the same manner they are also maintaining issuing of birth certificate, and also they are issuing death certificate, so that they have a complete record of the number of people in that particular area. That is the reason it is very important that they are the persons who issue birth and death certificate. In this manner they maintain the record of the people living in that particular area. Clear? Now next is make parks and gardens and plant trees. So park is a very good place, because in park a person of any age group can go and enjoy in the park, whether it is a kid, young, elder person also, elderly person also, all of them. There is no age limit here, anyone can go in the park. Park is the place where there is lot of trees, okay, lot of trees, and the fields are covered with the grass.
You can play games there also, or you can do yoga exercises also there. Many people do walking, because we always say that the morning walk, fresh air is very good for us. Okay, so we are human beings and we are very smart. जहां हमें लगता है कि इस चीज से हमें फायदा होने वाला है, हम जरूर करते हैं. ठीक है. सो मेक पार्क, गार्डन्स हैं एंड प्लांट ट्री. देखो चीजें, देखो बेटा, चाहे विलेज हो या टाउन हो या सिटी हो, रह तो रहे हैं वहां, सब जगह इंसान ही ना रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही रह रहे हैं ना. तो उनका लाइफ स्टाइल अलग अलग है. कुछ का बहुत फास्ट है, कुछ का स्लो है, कुछ का बहुत स्लो है. लेकिन कुछ जनरल फैसिलिटीज हैं जो सबको चाहिए, अदरवाइज लाइफ इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अब देखो विलेजेस में भी प्लांट ट्रीज कराई जा रही थी, और ये यहां भी हो रहा है, टाउन और सिटीज में भी, बिकॉज वी नो दैट दीज प्लांट्स आर आवर लाइफ लाइन. आवर लिविंग गैस, ऑक्सीजन, दे आर गिविंग. And when you study the living category, then it is divided into 3 parts: plants, animals, human beings. So plants are the only producers, only they can make their own food. We can't, animals can't. कुछ बच्चे सोचते हैं, देखो कैसे बोल दिया, हम लोग फूड नहीं बना पाते हैं, मम्मी किचन में सारा दिन खाना बनाती है, सर कहते हैं बना नहीं पाते हैं. तो बेटा मम्मी खाना बनाती है तो क्या बनाती है, ये प्लांट्स प्रोडक्ट ही ना बनाती होगी, या तो फिर एनिमल्स खाते होगे, फ्लैश खाते होगे, तो वो एनिमल्स का फ्लैश खाते होगे, मीट खाते होगे. ठीक है. तो हम कुक करते हैं, हम क्या करते हैं, कुक करते हैं, फिर उसको खाते हैं. ठीक है. लेकिन प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन food, and that process is known as photosynthesis. अब photosynthesis क्या, पूरी नहीं बताएंगे, प्लांट चैप्टर में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया था, इसलिए उसे याद कर लिया कि फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस थी. ठीक है. प्लांट चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब हो गया नेक्स्ट, बिल्ड एंड मेंटेन मार्केट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स. Build and maintain markets and public toilets. देखो ना, build and maintain, there are, if you go in your surrounding, you will see lot of market in your surrounding areas. So new marketplaces are also built for the welfare of the peoples. जैसे हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो शॉप्स हुआ करती थी छोटी छोटी, जब हम लोग आपकी तरह पढ़ते थे तो छोटी छोटी शॉप होती थी. आज देख लो, किसी भी शहर में चले जाओ, इवन टाउन्स में चले जाओ, बिग बिग बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं. ठीक है. मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं, हर जगह तुम्हें मिल जाएंगी. सो देयर आर वेरी बिग शॉप्स, एक ही जगह पे आप चाह के सारी चीजें खरीद सकते हो. इतनी फैसिलिटीज हैं आज की डेट में. इज इट क्लियर? सो बिल्ड एंड मेंटेन, और मार्केट्स को मेंटेन करने का काम भी इनका है. एंड पब्लिक टॉयलेट. ठीक है. देखो वी गो, सो देयर आर पब्लिक टॉयलेट्स भी होते हैं. अगर आप घर के बाहर हो और आपको वॉशरूम जाना है तो आप पब्लिक टॉयलेट्स भी बने होते हैं. यू कैन यूज दिस पब्लिक टॉयलेट्स आल्सो. ठीक है. आप इन पब्लिक टॉयलेट्स को भी यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? नाउ
we have discussed, student, what are the functions of the म्युनिसिपलिटी के जितने भी फंक्शंस हैं हमने डिस्कस कर लिए. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, बाय बाय स्टूडेंट.